بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسانوں میں بدترین وہ ہے جو کھانے پینے اور پہننے میں مشغول رہے۔ اگر اطمینان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ جس دل میں دنیا کی محبت جاگزی ہو، اس دل میں حکمت و دانائی کا قیام نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آئے اسے اللہ کا عطیہ سمجھو۔ 3 چیزوں سے اپنی تکمیل ذات کر لو۔ نمبر 1، خوف خدا، یہ تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، امید کا منبع اللہ کی ذات کو بناؤ گے تو تم میں اللہ کے اطاعت پیدا ہوگی۔ محبت یہ ہے کہ تو خود کو اللہ کی رضا میں ڈال دے۔ درویش وہ ہے جو نہ کوئی بری بات سننے، نہ دیکھے اور نہ زبان پر لائے۔ جس سچائی میں جھوٹ کا گمان ہو اسے ترک کر دو۔ عزت و تکریم انصاف سے حاصل کرو۔ مومن کی بیماری بھی باعث رحمت ہے کہ یہ اسے گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ درویش وہ ہے جو فاقے سے تو رہ سکتا ہے لیکن غیر اللہ سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ جو دل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات کے غلبے سے محفوظ ہے۔ اگر بزرگی کا رتبہ چاہتے ہو تو بادشاہ زادوں کی صحبت سے بچو۔ جسے لوگ خریدنا پسند نہیں کرتے اسے مت بیچو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لٹا دے۔ لوگوں کی بے رخی سے عاجز آ کر اپنی اصلاح احوال کی کوشش ترک نہ کرو۔ فقیر وہ ہے جو اپنے لباس کو کفن سمجھے۔ تلاوت کلام پاک سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ، کیوں کہ اصلیت ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ اسراف کرتے ہیں۔ اصل پیر وہ ہے جو تیرے اخلاق و عادات کو سنوار دے۔ جھگڑے کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ صلح کی گنجائش ہی نہ رہے۔ کسی غیر کی روٹی کھانے سے افضل یہ ہے کہ تو غیروں کو کھلائے۔ جب تو دولت مندوں کی صحبت میں بیٹھے تو اپنے دین کو مت بھول۔ صوفی اسے کہتے ہیں جس سے ہر آلودگی صاف ہو جائے اور کوئی اسے آلودہ نہ کر سکے۔ انسان کی عظمت کا اندازہ اس کے قول و فعل سے لگایا جاتا ہے۔ جب تم سے کوئی کم علم بحث کرے تو اس سے الگ ہو جاؤ۔ کسی معاشرے کی فلاح اس میں ہے کہ اس کی عورتیں اسلامی اقدار کی پابند ہوں۔ اگر اپنی بہتری کی خواہش ہے تو کچھ وقت اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھا کر ان کے رتبے کو ملحوظ رکھ اور ادب سے بیٹھ۔ دنیا ایک مہلک بیماری ہے، جسے لگ گئی چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے رزق میں اضافے کی تمنا ہے تو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا خیال رکھ۔ اپنے اعمال پر زیادہ گھمنڈ نہ کر کہ نجات کا انحصار عملوں پر نہیں بلکہ نیک نیتی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ چاہے تو گناہ گار کو بخش دے اور عابدوں زاہدوں کو پکڑ لے۔ اگر میں جانتا کہ زندگی بہت تھوڑی ہے تو زندگی کے لمحات سوچ سمجھ کر گزارتا۔ جو لوگ تجھ سے بڑائی کریں تو ان سے بڑائی اور زیادتی نہ کر بلکہ صبر اور تحمل اختیار کر۔ عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ بدلہ نہ لینے میں ہے۔ جب تیری داڑھی میں سفیدی نمودار ہو جائے تو موت کو اپنے قریب جان کر آخرت کے لیے کچھ کر لے۔ اپنے رب سے محبت کر کہ تجھ پر نیا رنگ چڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیالہ اس کا پناہ ہے، وہ جسے چاہے اس سے پلاتا ہے۔
जैसे शैतान इंसान का नफ्स अमारा ने गुमराह कर रखा है, इसके दिल को नफसानी ख्वाहिशात से बचाकर राह रास्त पर लाना मुश्किल काम है। तो अल्लाह को हर शय में देखना चाहता है तो दब घास में से सफ़े बनती हैं की तरह बुझ जा, कि जब इसे टुकड़े टुकड़े करके खूब कूट कर सफ़ बनाया जाता है तो मस्जिद में दाखिल होकर दर्जा कबूलियत को पा लेती है। मिट्टी को हरगिज़ बुरा ना कहो कि इस दुनिया में इस मिट्टी जैसी और कोई चीज़ नहीं। क्यों ना कि जब इंसान जिंदा होता है तो ये इसके पांव तले पायमाल होने के बावजूद शिकायत नहीं करती, और जब इंसान मर जाता है तो यही मिट्टी इसकी कब्र पर आकर इसके हाल को पोशीदा रखती है। अल्लाह ताला हर इंसान के दिल में बसता है, इससे जंगलों बियाबानों में तलाश करके अपने पांव जख्मी ना करो। मोहब्बत हर गर्ज और लालच से पाक होती है। जब इसमें लालच की खोट आ जाए तो झूठी कहलाती है। मुझे इन लोगों पर अफसोस होता है जो अपनी हिम्मत से अपने मसाइल हल करने के बजाय दूसरों की मदद और सहारे पर आस लगाकर बैठ जाते हैं। जो कीकर बोकर अंगूर की फसल हासिल करना चाहता है वो ऐसे ही है जैसे कोई खरदरी ऊन से रेशमी लिबास की उम्मीद करे। इसमें शक नहीं कि शक्कर, चीनी, मिश्री, गुड़, शहद और भैंस का दूध ये बहुत मीठी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी अल्लाह के नाम की मिठास को नहीं पहुंच सकती। तुझे जो रूखी सूखी रोटी मुयस्सर आए, सब्र शुक्र से खा और ठंडा पानी पीकर गुजारा कर। दूसरों की चढ़ी रोटी को ललचाई नज़रों से मत देख। जिस इंसान के दिल में एहसास फिराक नहीं, वो दिल कब्रिस्तान है जहाँ ज़िंदगी की हर अलामत नापायद हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंधे पर मसले डाले, गले में ओनी कफनी पहने और मीठी मीठी बातें करते हुए नज़र आते हैं। ज़ाहिरन ये बड़े मुत्तकी और परहेजगार नज़र आते हैं, मगर इनके दिल छुरी की तरह तेज़ और खून रेज होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिर में नूरो नूर दिखाई देते हैं, लेकिन इनके बातन अंधेरी रात की तरह तारीक और सियाह होते हैं। अगर गोहरे मकसूद चाहता है तो अपने मन की झील के गहरे पानी में तलाश कर। तमा और लालच की जोहर में हाथ डालेगा तो बदबूदार कीचड़ के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। अपने दिल से गफलत को दूर कर ले कि तुझे इस दुनिया में गिनती के दिन मिले हैं जो तेजी से गुजरते जा रहे हैं। जिन कामों में भलाई ना हो इन्हें भूल जाओ और हरगिज़ ना करना कि आखिरत में अल्लाह के हजूर शर्मिंदा ना होना पड़े। वो बदबख्त रूह जिससे रब ताला ने मुंह मोड़ लिया हो, अब वो ख्वाह जिस कदर अफसोस करे और गम में गुलती रहे, रब ताला को दोबारा पाना इसके नसीब में ना होगा। जो सर अल्लाह ताला के हजूर झुककर इसकी बुराई बयान नहीं करता, वो इस लायक नहीं कि वो अपनी जगह रहे, बल्कि इसे गर्दन से जुदा कर देना चाहिए। अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी इन्हीं को मिलती है जो रातों को जाग कर फिक्र के साथ जिक्र इलाही करते हैं। बेज़री और बेबसी के आलम में तर्के दुनिया कोई कमाल नहीं। असल कमाल तो ये है कि ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़कर अल्लाह से लो लगाई जाए। जो घर तुम्हारा ज़मीन के ऊपर है वो तो आर्जी है, असली घर तो कब्र है जहाँ तुझे ज़रूर जाना है और लंबे अरसे तक क़याम करना है, रोज़े महशर पिया होने तक। कफन में लिपटे मुर्दे को अबरत की नगाह से देखो कि अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी उम्मीदें बांधे फिरता था और आज 4 आदमियों के कंधों पर चला जा रहा है। अब अगले जहां में इसका कोई वसीला नहीं सिवाय इसके कि जो नेक अमल इसने दुनियावी ज़िंदगी में किए थे वो ही इसकी आखिरत की पूंजी है। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम भी यही है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया वो महफूज हुआ और जो अपनी ज़रूरतों के कामों में आया वो खर्च हो गया। अल्लाह ताला की इबादत रात के पहले हिस्से में फूल
और पिछले हिस्से में फल होती है, क्यों ना कि यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला दुआओं को शफ़े कबूलियत अता फरमाते हैं। जो शख्स अपनी ज़िंदगी के तमाम अमूर सब्र के साथ अंजाम दे, अल्लाह ताला इसकी कोशिशों को बराबर करता है, क्यों ना कि सब्र की कमान से निकला हुआ तीर कभी खता नहीं जाता। ऐ बंदे, सब्र वो नस्बुल ऐन है कि अगर तू इसे अपनी रूह में पुख्ता कर ले तो आप दरिया हो जाएगा जो बगैर किसी रुकावट बहता ही रहता है। जब अल्लाह ताला किसी पर मेहरबान होता है तो बहुत बुरे से नेक खो हो जाता है। कंबल पहनने और गले में मोटे मनकों की माला डालने से कोई शख्स दरवेश या अल्लाह वाला नहीं बन सकता। अल्लाह वाले और दरवेश की निशानी ये है। नंबर 1, इल्म और अक्ल रखते हुए भी खुद को बेइल्म और कम अक्ल जाने। नंबर 2, ताकत और कुदरत रखने के बावजूद खुद को नातवां समझे। नंबर 3, कम मालो स्वभाव के बावजूद इसमें हाजतमंदों को शरीक करे। नंबर 4, माल की तंगी से दिल बर्दाश्त न हो, जो भी मुयस्सर है तकसीम कर दे। हरगिज़ किसी का दिल न तोड़ो, क्यों ना कि ये ऐसा मोती है जिसका कोई मोल नहीं। अगर तू दुनिया की रंगीनियों में खोकर अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल हो गया तो समझ ले तूने दुनिया की रंगीनी बसात पर जिंदगी की बाजी हार दी है। जो अल्लाह ताला को याद करते करते मर जाते हैं, वो मरने के बाद भी अल्लाह को याद करते रहते हैं, और जो अल्लाह की याद से गाफिल है तुम इन्हें जिंदा ही ना समझो।